جس ہستی نما دعوت دین جا رہے ہیں ساڑھے استاد العلامہ قاری اصغر نوری صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے بھی استاد اور اکثر امیر المجاہدین بھائی سعد حسین انہاں دے بھی استاد محترم اور بھائی انس انہاں دے استاد محترم قبلہ شیخ الحدیث با تفسیر جس ہستی نما دعوت دین جا رہے ہیں سانو بہت بڑا اس گل تے فخر تے ناز آ کہ اس عطر سنگ دی دھرتی تے ہستی ساڑھے کل جلوہ فروز ہوئی تو میں انہوں نے دعوت خطاب دیاں گا کہ اپنے اصل انداز نال صلی اللہ علیہ مصطفی فرمان جس طرح جنہ وہ پند کر کے آئے نے تسی انہاں زور لگا کے انہاں دی تھکاوٹ تو جائے تھوڑا ذوق ویکھ کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اور پتر بابے آدم دا تو ووٹ بابے خادم دا پتر بابے آدم دا بولو یار پتر بابے آدم دا سارے آدم دا پتر نہیں چوپ کر کو نمی گل ہے پتر بابے آدم دا بولو کج کے پتر بابے آدم دا اینا نالیاں واسطہ نہیں سرکار جی نموس واسطے نہ بلے نے نال جانا نہ شیر نے نال جانا نہ اینا تیر آیا نال جانا ہے جنہ دے نال دے کوٹھے چم دیو وہ سے پرچی نے قبر دے جانا ہے تو رسول اللہ نے آن کو چھڑا لینا ہے پتر بابے آدم دا پتر بابے آدم دا بولو پتر بابے آدم دا تاجدار ختم نبوت الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
كلهم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است ابو بکر ہم چکابہ عمر در طواف اوست عثمان آب زمزم علی حج اکبر است من بندہ صحابہ و آل محمدم از صدق دل غلام بلال محمدم کوئی گل باقی رہے گا نے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کوہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور نبی دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس و انور پر ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد معزز و محترم محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر آپ تمام احباب کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں سردی کے موسم میں رات کے اتنے پہر بھی آپ اپنے آقا کی محبت کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے جتنے بھی سانس آپ نے اللہ کے گھر میں لیے ہیں جتنے لمحے آپ نے اللہ کے گھر میں گزارے ہیں اللہ ان لمحوں کو ہمارے گناہوں کا کفارہ اور قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے گرامی قدر سامعین حضرات آپ نے بڑا خوبصورت بیان سنا ہے آپ تمام کے چہروں پر میں دیکھ رہا تھا خوشی اور مسرت میرے آقا کا فرمان ہے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو اپنے نبی کا ذکر سن کے جس چہرے پہ خوشی آ جائے پکا مومن ہوتا ہے اور جس آدمی کو حضور کا ذکر سن کے اس چہرے پہ خوشی نہ آئے اس کا ایمان انتہائی کمزور ہے آپ کے چہروں پہ خوشی دیکھ کر میرا دل اور بھی خوش ہو رہا تھا اللہ آپ کی ان خوشیوں کو سلامت رکھے میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے لمبی چوڑی گفتگو کا وقت نہیں ہے میں بس حاضری لگوانی ہے اس لیے توجہ سے پہلی بات سنیے ہمارے استاد گرامی فرماتے تھے کہ اگر بندہ ساری زندگی حضور کی تعریف کرے بندہ ساری زندگی حضور کی تعریف کرے جتنی بھی اللہ اس کو زندگی عطا فرمائے وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہی نہیں کر سکتا میرے آقا نے حضرت جبریل امین سے کہا تھا
اے جبریل تم مجھے میرے عمر کی باتیں سناؤ۔ تو حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار نے عرض کی یا رسول اللہ عمر کی باتیں کرنے کے لیے اگر مجھے نوح علیہ السلام جتنی عمر مل جائے تو آپ کے ایک غلام کی باتیں پوری نہیں ہوتی۔ جب بیان کرنے والے جبریل امین ہو اور ذکر فاروق اعظم حضور کے غلام کا ہو اور صدیاں بھی ناکافی ہو جائیں تو بتاؤ حضور کے ذکر کے لیے یہ گھڑیاں کیسے کافی ہو سکتی ہیں؟ پھر اگر 5 منٹ بھی گفتگو ہو، 10 منٹ ہو، 15 منٹ ہو، جتنی بھی ہو، وہ حاضری لگوانا مقصود ہے، حضور کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ ابھی علامہ صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان، حضور کو جو اللہ نے رفعت و مقام عطا کیا ہے وہ اللہ نے چھپا کے بھیجا حضور کی شان کو۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے آقا کی یہ شان ہے اگر مردہ ہڈیوں پر حضور کا نام لے دیا جائے تو وہ زندہ ہو جاتی ہیں۔ حضور کی شان تو براء البراء ہے، یہ صرف حضور کے نام کی برکت ہے۔ میں نے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، بڑی مختصر سی حاضری اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ ایک تو یہ محفل میلاد ہے اور دوسرا میرے استاد گرامی اور ہم سب مسلمانوں کے قائد، اس دور کے سب سے بڑے عاشق رسول اور سب سے بڑے دلیر اور سب سے زیادہ سخی، میں نے 20 سال ان کے بڑا قریب ہو کے دیکھا۔ 20 سال میں ان کے قریب رہا ہوں، 20 سال کا عرصہ۔ میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں، باوضو مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں نے ان سے جیسا سخی عالم نہیں دیکھا، میں نے ان سے جیسا دلیر عالم نہیں دیکھا۔ اگر 20 سال کی باتیں شروع کریں تو وہ یہ محفل تو ناکافی ہوگی، لیکن بات صرف پہلے تو رسول اللہ کی بات کرتے ہیں اور پھر ایک ان کی بات کرتے ہیں تاکہ دونوں نسبتیں پوری ہو جائیں اور عرس کا اور اس محفل کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، میرے محبوب وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے۔ اب کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حضور نہیں جانتے، کوئی ایسی بات نہیں، نہ ہمیں کوئی ایسی دیوار نظر آئی ہے جس کے پیچھے حضور نہیں جانتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا ان کو علم نہیں تھا، میں نے کہا میں نے تو ایسے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا دیواریں ان کی علم کے درمیان حائل ہو جائیں۔ میرا نبی تو وہ ہے مصلی امامت پہ کھڑا ہو، ہاتھ بڑھائے تو جنت کے انگوروں کو پکڑ لیتے ہیں۔ 6 مرتبہ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ میرے آقا نماز پڑھاتے ہوئے ہاتھ اٹھایا، پیچھے کر لیا، پھر اٹھایا، پھر پیچھے کر لیا، پھر اٹھایا، پھر پیچھے کیا۔ صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا حضور آج جیسا عمل پہلے ہم نے آپ کو کرتے نہیں دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا، میری نگاہ اٹھی، جنت کی دیوار کے باہر انگوروں کا ایک گچھا لٹک رہا تھا، میرے دل میں آیا کہ میں اتار کے تمہیں کھلا دوں، تمہیں کھلا دوں۔ پھر میں کہا کہ ان سب نے جنت میں جانا ہے، وہاں جا کے کھا لیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اگر میں اس کو اتار لیتا، توجہ بڑی ذمہ داری، اگر میں اس انگوروں کے گچھے کو اتار لیتا تم بھی کھاتے، تمہاری نسلیں کھاتی، قیامت تک لوگ کھاتے، وہ ایک گچھا ختم نہیں ہونا تھا۔ یار اللہ نے تو ہمیں ایسا نبی عطا کیا ہے جن کا ہاتھ بظاہر تو اٹھتے ہوئے مصلی سے اوپر ہوتا تھا لیکن حقیقت میں جنت میں پہنچ جاتا تھا۔ ان کے ہاتھ کی یہ برکتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں محبوب عطا کیا ہے۔ میں ایک بات کرنی ہے، لمبی چوڑی نہیں۔ امام ابن نعیم نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الفتن، اس میں جتنے بھی فتنے قیامت تک آنے ہیں میرے آقا نے ہر فتنے سے امت کو آگاہ کر دیا ہے، لیکن یہ تو ہماری سستی، ہم اس کو پڑھتے نہیں۔ میرے آقا نے ہر فتنے سے امت کو آگاہ کیا ہے۔ ایک عرابی دور سے آیا، دوسرے شہر سے، اور وہ جب مدینہ پاک میں آیا اس کی پہلی ملاقات حضرت علی المرتضیٰ سے ہوئی، بولیے سبحان اللہ۔ حضرت علی ملے، اجنبی دیکھا،
पूछा कौन हो, कहाँ से आए हो? उसने अपने इलाके का नाम बताया कि मेरे कबीले वालों ने मुझे हुजूर के पास भेजा है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जो ज़कात के पैसे हैं, उशर के पैसे हैं, हम आपके पास भेजते हैं। हमारे कबीले वालों ने कहा है या रसूल अल्लाह, जब आप नहीं होंगे तो फिर हम अपने ये हदाया, ये ज़कात, ये पैसे किसके हवाले करें? तवज्जो नहीं की आपने। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ तेरा सवाल बड़ा अहम है, तू हुजूर के पास आना जाना और जो मेरे आका तुझे जवाब दे मुझे भी बताना, मुझे भी बताना। वो हुजूर की बारगाह में पहुँचे, अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मैं फ़लाँ कबीले से आया हूँ, मेरे कबीले वालों ने मुझे अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा है और हमें ये सवाल पूछ रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके बाद हम अपना माल किसको जमा कराएं? तो मेरे आका ने फरमाया, जब मैं ना हूँ तो मेरे बाद अबू बकर को देना। है नहीं ठंडी सुभान अल्लाह? जब मैं ना हूँ तो अपना माल किसको देना? हज़रत अबू बकर को देना। वो सुन के सलाम किया, वापस जाने लगा। रास्ते में हज़रत अली इंतज़ार कर रहे हैं। पूछा क्या कहा है हुजूर ने? अर्ज़ की हुजूर ने फरमाया है कि मेरे बाद अपना माल अबू बकर को जमा कराना है। फरमाया यार जा फिर पूछ कि हुजूर अगर अबू बकर ना हो तो फिर किसको जमा कराऊं? फिर वो वापस चला गया। अर्ज़ की हुजूर अगर अबू बकर ना हो तो फिर किसको जमा कराऊं? मेरे आका ने फरमाया अबू बकर ना हो तो फिर उमर को जमा कराना है। किसको जमा कराना है? उमर को जमा कराना है। गए, हज़रत अली मिले, पूछा क्या हुजूर ने फरमाया? अर्ज़ की हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर ना हो तो अपना माल उमर के पास जमा करा देना। मौला कायनात ने फरमाया फिर वापस जाओ, हुजूर से पूछो या रसूल अल्लाह, अगर उमर भी ना हो तो फिर किसको जमा कराएं? वो फिर गए हुजूर के पास, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अगर उमर भी ना हमें मिले, ना हो हम आए तो फिर माल किसको जमा कराएं? मेरे आका ने फरमाया फिर उस्मान को जमा करा देना, फिर उस्मान को माल जमा कराना। सही हदीस पाक इमाम इब्न नुआइम ने किताबुल फितन में ये बात हदीस मुकम्मल तफसील से लिखी है। मौला कायनात ने सुन के फरमाया जाओ वापस जाओ, हुजूर से पूछो या रसूल अल्लाह, अगर उस्मान भी ना हो तो फिर माल किसको जमा कराना है? फिर वो वापस आए, हुजूर से अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अगर उस्मान भी ना हो तो फिर हम अपना माल किसको जमा कराएं? मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया जो तुझे भेज रहा है ना फिर उसको जमा करा देना। फरमाया जो तुम्हें भेज रहा है फिर उसको जमा कराना। बताओ मेरे आका को दीवार के पीछे का इल्म है कि नहीं है? ऊंची बोलो जरा, दीवार के पीछे का इल्म है कि नहीं? लोगों को अभी तक वो दीवार नहीं समझ आई कि वो कौन सी दीवारें चीन उनके ज़हनों में बनी हुई है जिसके पीछे हुजूर नहीं जानते। बातें को करने वाला अगर दूर भी खड़ा हो, मेरे आका मस्जिद में देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कौन भेज रहा है, किस नीयत से भेज रहा है। मेरे आका ने खुलफा की तरतीब भी बयान कर दी। मेरे बाद मेरा खलीफा अबू बकर होगा, अबू बकर के बाद उमर होगा, उमर के बाद उस्मान गनी होगा और उसके बाद मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा होंगे। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शानें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को अता की, छुपा कर भेजी थी, छुपा कर। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पे गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जलवा अपना पहाड़ पे डाला, पहाड़ से वो नूर उठा, मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें उस नूर से रोशन हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस नूरे सिफाती से। तो आप खुद फरमाते हैं रात की तन्हाई में सियाह पत्थर पे सियाह चींटी चल रही हो तो मैं उसको देख लेता हूँ। उसको मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं उसको देख लेता हूँ। जिस निगाह ने डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट अल्लाह का नूर सिफाती देखा हो, उसके नूर की आंखों का ये आलम हो कि वो रात की तन्हाई में, अंधेरी रात हो, सियाह पत्थर हो, सियाह चूंटी उस पे चल रही हो तो वो उसको देख लेते हैं। मेरे महबूब ने तो सर की आंखों से रब को देखा है। फरमाया राई तो रब्बी फी आसन सूरतिन, मैंने अपने रब को मेराज की रात अपने सर की आंखों से देखा है। जिस महबूब ने इन आंखों से अल्लाह के जलवे किए हों,
आप क्या समझते हैं हम इस मस्जिद में बैठ के सर्दी की रातों में उनका जिक्र करेंगे? वो हमें नहीं देख रहे, वो हमें देख भी रहे हैं, हमारी बातें सुन भी रहे हैं और यकीनन खुश भी हो रहे हैं। हुजूर अपना जिक्र सुन के खुश होते हैं, बेशुमार इस पर हदीसें हैं। अल्लाह अकबर। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कश्फुल माजूम ने ये बात लिखी है, सारी दुनिया के वली, सारी दुनिया के वली, उनकी सबकी इबादतें एक तरफ और नबी का सांस लेना एक तरफ है। नबी अगर सांस ले तो सारी दुनिया के वलियों की इबादत तो सांस के बराबर नहीं हो सकती। कोई बदबख्त उम्मती हुजूर के बराबर हो सकता है? हाँ जी, ये मेरे आका की शान है। अल्लाह अकबर। मैं आखिर में उस्ताद ग्रामी क़िबला की एक बात अर्ज़ करके, मैं अगर आपकी सखावत या आपकी दलेरी या आपके इल्म, आपकी खिदाबत, वो सारी दुनिया के सामने आपकी जो है वो शान अया है, लेकिन अभी 100 साल लगेगा उनकी शानों को समझने के लिए। जिनके ग़ुलामों की ये शान है, उनके आका की कितनी शान होगी। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। मैं एक ही बात अर्ज़ करूँगा, ज़्यादा लंबी बातें नहीं। वैसे तो उनकी इतनी बातें जब शुरू हो जाएं तो ख़त्म होती नहीं है। हमने उनके जलवतें देखी, खलवतें देखी। मैं जामे नुमानिया में हमारा मदरसा है, जहाँ हमारे उस्ताद ग्रामी नाज़िम तालीमात थे, वहाँ पढ़ाता था 2006 से। और 2017 में जब धरना हुआ तो उससे कुछ दिन पहले मैं आपके पास आया और मैंने कहा जी मेरी कमर में दर्द है, अब मैंने पढ़ाना नहीं है, मुझे पढ़ाने से आप इजाज़त दे दें, मैं नहीं पढ़ा सकता। तो मुझे फरमाने लगे मुफ्ती साहब मेरी कमर नालों ज़्यादा तेरी कमर दर्द कर दी। मैं कहा जी नहीं ज़्यादा तो नहीं। फरमाया जी मैं काम कर रहा तो तू क्यों नहीं करता। तो मैं खामोश रहा, ज़ाहिर है इसका कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर मैंने उज़र पेश किया, हुजूर मुझे इजाज़त दे दे, मैं नहीं पढ़ाना। फरमाया तेनू कोई टेंशन है? मैं कहा जी नहीं। तो थोड़ी देर ऐसे खामोश रह के फिर उन्होंने वो अपने उनके सामने एक डेस्क होता है जिसके ऊपर किताबें रखी होती है, उससे पैसे निकाल के मुझे पैसे दिए। फरमाया मौलाना ऐ पढ़ो तो तुसी दोवें जी जाके उमरा करके आओ, अल्लाह सारियाँ परेशानियाँ दूर कर दे। मैंने किताबों में पढ़ा है कि उस शागिर्द खुश होकर अपने उस्ताद को उम्रे के टिकट देते हैं। ये तो आपने भी सुना होगा, हज़ारों मिसालें ऐसी मौजूद हैं। लेकिन हो सकता है ये आपने पहले ना सुना हो कि उस्ताद अपने शागिर्द को भेज रहा है। ये सिर्फ उनका खासा था। मुझे फरमाने लगे मौलाना ऐ पैसे लो तो जो दोवें जी उमरा करके आओ। तो मैंने वो थोड़ी देर पैसे पकड़े, फिर मैंने कहा हुजूर हो गए कि पैसे, अब आपकी इजाज़त होगी, मैं उमरे पे जाऊँगा। फरमाने लगे नहीं मौलाना जेब विच पाओ नज़र लग जाती, और भी चाहिए हो तो मैनू दस देना। ये उनकी बेशुमार जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम। और हकीकत है मैंने उन जैसा सखी कोई नहीं देखा। बड़ी सखावत की उनकी बातें हैं। हमने बड़े बड़े उलमा को देखा, कुर्बानी का दिन आता है, अगर वो ज़्यादा ही ज़ौक़ में है तो छोटा सा बकरा ले आते हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन जब आप कुर्बानी करते थे तो बड़े खूबसूरत बकरे, इतने खूबसूरत कि जब उनका आखिरी उमर मुबारक का साल था, उस साल हम हाज़िर हुए। मेरी आदत थी, करीब ही मेरी मस्जिद है, मैं नमाज ईद पढ़ के उनके पास हाज़िर हो जाता था। 4 बड़े खूबसूरत बकरे। वो कसाई कहने लगा कि कारी साहब, उस्तादों को कहने लगा कारी साहब ये जे बकरे थे आज तक मैं किसी से ज़बह कीते ही नहीं, इतने खूबसूरत। वो खुद उनको घर रख के मस्जिद की साथ मदरसा उसकी छत के ऊपर और पूरा साल पालते थे। और वो बकरे भी कितने खुश नसीब होंगे। उस्ताद गिरामी ऐसे कपड़ा अपने गोद में रख के, फिर वो पंजाबी में ऐसी तांबिया कहने हैं, तसला भी कहने हैं, उसके अंदर वो छोटी छोटी तूड़ी हाथ से ऐसे मलते और फिर उसके ऊपर वो दाना डालते। फरमाया ए उन पाओ, ए उन पाओ, ए उन पाओ। जिक्र भी साथ करते, साथ वज़ाइफ भी पढ़ते। वो कितने खुश नसीब बकरे होंगे जो उस्तादों के हाथ से खाना खाते होंगे। अल्लाह अकबर। और सदियों बाद लोग कहेंगे कोई है बंदा यार जिन्हें मौलाना खादिम रिजवी ने वेख्या होए। हाँ जी, सदियों बाद लोग पूछेंगे। आज तो उनके शागिर्द, उनके ग़ुलाम मौजूद है। जब उनकी बातें सदियों बाद राज खुलेंगे, यार एक
54 साल का बाबा सारी दुनिया के मुसलमानों को जगा के चला गया, अकल नहीं मानती। लोग कहेंगे तेरी अकल नहीं मानती, मैंने आंखों से देखा है, मैंने आंखों से देखा है कि उम्मत सो गई थी, हुजूर की नामूस के लिए उस बाबे ने उम्मत को फिर जगा दिया है। मैं एक आखिरी बात, सिर्फ आखिरी बात कह रहा हूं। अभी हमारा जो आर्मी चीफ बना है वो हाफिज कुरान है। क्या है? पहले हमारे मुल्क को आर्मी चीफ भी, जज भी और वज़ीर भी और मशीर भी ऐसे मिले, कई ऐसे थे, कोशिश की उन्होंने, बेचारों ने कुल हुवल्लाह पढ़ने की वो भी नहीं आ सकी, किसी ने इन्ना तो शुरू की वो भी नहीं पूरी आ सकी। हो सकता है मेरा रब हम पे करम फरमाना चाहता है, हमारा आर्मी चीफ भी हाफिज कुरान आ गया। क्या आ गया? और हालात ऐसे बता रहे हैं कि वजीर आजम भी हाफिज कुरान ही आने वाला है। हमारा वजीर आजम भी हाफिज कुरान ही आने वाला है। हमारे कायदे मोहतरम, हमारे उस्तादों की दलेरी को अभी लोग नहीं समझ सके। गोलियां सामने चलाने वाली इतनी फोर्स थी और आपने अपने जो है वो मुबारक पाँव अपनी गाड़ी से बाहर निकाल के कहने लगे मुझे खादिम रिजवी कहते हैं, मारो गोली, ये सर मैंने हुजूर के लिए रखा हुआ है, मुझे इस जिंदगी की कोई ज़रूरत नहीं, अगर ये मेरी जान हुजूर पे चली जाए तो ये सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश है। उनकी दलेरी को लोग 100 साल तक पढ़ेंगे और परखेंगे, यार एक व्हील चेयर पे बैठने वाला बाबा इतना दिलेर कैसे हो गया। और अलामा कहते हैं कि बंदा दिलेर ही उस वक्त होता है जब उसके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा होता है, जब उसके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा होता है। और मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, मस्जिद में बैठ के बता रहा हूँ, पहले अरबों ने, अल्लाह ने अरबों से दीन की खिदमत ली और फिर तुर्क आए, 800 साल उन्होंने दीन की खिदमत की। अब हो सकता है हिंदुस्तान वालों की बारी हो। अल्लाह ने हाफिज़ कुरान आर्मी चीफ दिया है, आने वाले वक्त तकाजा भी कर रहे हैं और मेरी नज़र देख भी रही है। ये बड़ा जुमला मैं ज़ुबान से कहना नहीं चाहता, लेकिन हालात बन रहे हैं। हमारा वज़ीर आज़म भी हाफ़िज़ कुरान, हमारे कायदे मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिजवी ज़ीदा शरफ़ो आने वाले हैं और आपके लिए भी बड़ी सादत है, आपको भी अल्लाह ने हाफ़िज़ कुरान अता कर दिया है। सुस्ती ना करना, सुस्ती ना करना, हो सकता है ये मौका फिर ना आए, फिर कोई चोर लुटेरा आए और आप नाली और गलियों के चक्कर में फिर कहीं भूल ना जाएं। ये अल्लाह ने आपको बड़ा गनीमत मौका दिया है, आप फिर देखना कुरान के सदके तब्दीली कैसे आती है। हमारे उस्ताद फरमाते हैं जब दीन आ गया गलियां भी आपे पक्कियां हो जाएंगियां ते रोटियां भी आपे सीधियां हो जाएंगियां, फिर हमें एमपीए के डेरे पे आने की जरूरत नहीं होगी, एमपीए खुद तेरे घर में जनाजा भी पढ़ाने आएगा। ये जिनको हम वोट देते रहे हैं वो तो जनाजा पढ़ने भी नहीं आते थे, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। अभी अलामा साहब ने कहा और ये हमारे नकीब भी कह रहे थे, जब गाजी इल्म दीन का जनाजा हुआ तो हुजूर खुद पढ़ने आए कि नहीं आए? भाई वो तो कुरान भी देख के नहीं पढ़ा हुआ था, 21 साल का नौजवान था, ना आलिम ना हाफिज ना कारी, कुछ भी नहीं। तो पीर जमात अली शाह साहब ने क्या देख के इकबाल ने, शाह साहब असी ते गल्लां ही करते रह गए, तो लोहारा दा मुंडा बाजी लै गया, लोहारा दा मुंडा बाजी लै गया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गाजी तेरा नाम रहेगा, ताजदार खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है, इसको ज़ाया नहीं करना। मैं को वोट मांगने नहीं आया, सच्ची बात है, ना मुझे कहा गया है, ना मैं वोट मांगने, ना मैं अभी भी तुमसे वोट का मुतालबा किया है। मैंने तो शख्सियत को देख के तुम्हें मुबारकबाद दी है। ऐसे लोग खुद नहीं आते, इनको लाया जाता है। ये हुजूर की नज़र से मुंतखब होके आए हैं, कितना खूबसूरत चेहरा है। जब ये आएंगे कुरान की तिलावतें भी होंगी घर घर में, हाँ जी, और फिर बरकतें भी होंगी, हुजूर का दीन आएगा तो फिर सारी परेशानियां खुद ही हल हो जाएंगी। क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, बस सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, इन्हें तो सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले मोहब्बत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।
नहीं हुन बहुत टाइम हो गया। हाँ हाँ जी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हमारे एक दोस्त लाहौर के हमारे साथी हैं, उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साकिब रज़ा रज़वी साहब, उस्तादों के शागिर्द भी हैं। लाहौर में इचरे में वो उस्ताद हैं, उनका इदारा है। मैं पिछले दिनों उम्रा करके आए तो मैं उनकी ज़ियारत के लिए गया तो मुझे उन्होंने ये बात सुनाई, वो मैं आपको मोहब्बत की बात सुनाता हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। फरमान लगे मुफ्ती साहब, मुझे वहाँ एक आदमी मिला जो इंग्लैंड के रहने वाला था, इंग्लैंड के। करामतों का मकाल नहीं, हमारे उस्ताद तो ख़ुद करामत थे। उनका चेहरा कितना खूबसूरत था। आपने जिसने ज़ियारत की है, ऐसा चेहरा 10 साल 2009 में हादसा हुआ, वो उससे पहले बिल्कुल ठीक थे। मैं 2000 से लेकर 2004 तक पीर मक्की उनके साथ नायब भी रहा, उनका खादिम रहा, उनकी खिदमत करता रहा। उस वक़्त भी उस्ताद ऐसे ही थे और कितने साल वो व्हील चेयर पे रहे और उनका नूर चेहरे का और ही बढ़ता जाता था। वो बात कहते हैं ना गल में चोरे, तो इसमें बड़ी बातें होती थी, समझ नहीं आती थी क्या, अब समझ आती है गल में चोरे। यार अगर कोई बंदा बीमार होवे ना तो 4 दिन उन्हें बुखार होवे, 5वें दिन बंदा उन्हें मिले, कहता की गल है यार तेरा चेहरा, वो कहता मैंने बुखार है। क्या है जिन्हों 4 दिन बुखार होवे चेहरे तो पता चल जाता कि नहीं जाता। यार जड़ा मतलब 12 साल व्हील चेयर पर रहते, तकलीफ भी ऐसी हो कि उसकी कमर का ऑपरेशन हुआ हो और 5 मिनट भी वो बैठ ना सकते हो और वो बंदा व्हील चेयर पे 24 घंटे जो है वो लोगों को दीन को हुजूर की मोहब्बत दिलों में तकसीम कर रहा हो, फिर गल में चोर है कि नहीं है, गल में चोर है कि नहीं है। वहाँ तकलीफ नहीं। हमारे उस्ताद फरमाते वो जेल में 6 महीने मुझे वहाँ उस कोठरी में रखा, दिसंबर की सख्त सर्दी है और वो कंबल भी नहीं देते थे। उनको ऊपर से आर्डर था मौलवी नूं तंग करके रखना है, पर मैं पुत्रो तंग कोई और होएगा, असां उन्हां नाल लाइयां ने, तुसीं सानू तंग नहीं कर सकते, असीं जिस हालत में रहिए सुखी सुखी हाँ। फरमाया कंबल जो देते थे उसमें भी पानी डाल देते थे, ठंडा कंबल। फरमाया इतनी सर्दी में, हालांकि वहाँ सेहतमंद भी आदमी, उस्ताद फरमाते एक दिन नहीं गुजार सकता था, मैंने 6 महीने वहाँ गुजारे। ए वे गल में चोर है, ऐसी गल में चोर। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। वो हमारे साथी फरमाने लगे कि मैं जब मदीना पाक में गया तो मुझे वहाँ इंग्लैंड का एक आदमी मिला, मुसलमान था और वहाँ ही रहने वाला था, बड़ा अमीर आदमी था। तो वो एक बुज़ुर्ग हैं, सोफ़ा पे बैठते हैं, वहाँ लोग उनसे पास आके दुआएं करवाते हैं। मैं उसको देखा, मैं भी बैठा हुआ था, मेरी वो कहते पहले भी हाज़िरी थी, मैं दुआ के लिए बैठा था। तो वो आदमी आया और उसने वहाँ ये बात सुनाई कि मैं इससे पहले भी यहाँ आया हूँ। वो इंग्लैंड वाले आदमी ने बताया कि मैं इससे पहले भी मदीना पाक में मेरी हाज़िरी हुई, और वो सबको बताने लगा जो वहाँ मौजूद थे। तो कहने लगे कि क्या उसने बताया, कहने लगे मेरी बेटी थी और वो सख्त बीमार थी, मैंने बड़ा इलाज करवाया, बड़े महंगे महंगे जगह से इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। तो मैं इस बाबा जी के पास आया जहाँ हम बैठे थे। वो कहते हैं उस बाबा जी के पास मैं पिछली हाज़िरी में आया, अभी उस्तादों का विसाल नहीं हुआ था। वो कहते कि मैं उनके पास आया, जी दुआ कर दो मेरी बेटी बीमार है। तो वो मोबाइल पे ना देख रहे थे, तो उस्तादों की तस्वीर आई, तो वो कहने लगे कि एना को दुआ करा ले, ऐसे तस्वीर करके मोबाइल की, कहने लगे कि एना को दुआ कराई। तो मैंने देखा एक मौलवी है, जैसे हमारे बारे लोगों का तस्वुर होता है मौलवी है की है। तो कहते वो दिन गुजरते गए, हफ्ता गुजर गया, महीना गुजर गया। जब उस्तादों का विसाल हुआ, पूरी दुनिया के मीडिया पे जो है वो जब ख़बरें आने लगी, नाम वही था जो बाबा जी ने बताया था, एना को दुआ कराना खादम रिजवी को।
कहते हैं मैंने वो मौलवी समझ के बात दरगुजर कर दी, कोई पीर होंगे तो हो सकता है कि मैं कोशिश करता। मौलवी जो है ना, मौलवियों बारे लोगों का तस्वुर है, कहते जब वो मैंने तस्वीर देखी और वो जनाजे की तस्वीरें देखी तो मैं अपना सर पकड़ के बह गया। मैं क्या मैं केड़ी गलती पै के बैठा, पाकिस्तान तो मैं बड़ी आसानी नाल जा सकता सा, मैं दुआ क्यों नहीं कराई। तो मैं बड़ा परेशान था। इसी परेशानी में एक हफ्ता गुजर गया। कहते हैं कि एक रात में सोया हुआ था तो उस्तादों का मुझे दीदार हुआ। अभी माला के मैंने सामने ज़ियारत नहीं की, तस्वीर देखी थी, वो भी सरसरी उस बाबा जी ने दिखाई थी। कहते उस्तादों का मुझे दीदार हुआ। फरमान लगे की गल है। मैं क्या जो बुजुर्गों ने मैनू कहा सी दुआ वास्ते, तुसी ते दुनिया तो चले गए, दुआ किंदे कोल करा। तो फरमान लगे मैं भी दुआ कर दी थी। ते तेरे महल्ले च मेरा एक शागिर्द है जिंदा नाम है मौलाना यूनुस, ओदे कोलों भी जाई दुआ कराई ते तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। कहते मैं घर में आया ना तो मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वो दुआ तो बाबा जी ने वैसे ही कर दी। कहते मेरी बेटी ठीक हुई, लेकिन साथ ये भी कहा था तेरे महल्ले का जो इमाम है, ये लंदन की बात है कि वहाँ मेरा शागिर्द है, वो उसका नाम है मौलाना मोहम्मद यूनुस रिजवी। फरमाया तो उससे भी दुआ कराना, अल्लाह तेरी बेटी को शिफा दे देगा। कहते मैं अपने वो कारी साहब के पास गया। मैं कहा कारी साहब आओ मेरे घर जरा। कहते पहले वो कभी मैंने ना उसको दावत दी थी, बस मस्जिद में गया, नमाज पढ़ी आ गई। अब मैंने उसको दावत दी, वो मेरे घर में आए तो मेरी बेटी जो फूल लेके खड़े थे ना हमारे घर वाले, तो उनमें मेरी बेटी भी खड़ी थी। अब फरमाया ये मौलाना की दुआ से ठीक हुई है और आपकी भी दुआ कर दें, क्योंकि मौलाना ने कहा है अब मैं इंशाल्लाह जब भी ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं मौलाना की कब्र पे ज़रूर हाज़िरी दूंगा। ऐसी अगर मिसालें बयान कर तो बेशुमार मिसालें हैं। ये हैं करामात, लेकिन उनकी सबसे बड़ी करामत कि उन्होंने थोड़े से अरसे में हुजूर की मोहब्बत जो नौजवानों के दिलों में पैदा की है। मैं यहाँ देख रहा हूँ बूढ़े कम हैं, नौजवान ज़्यादा हैं, और ये मंज़र इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होगा। अभी असम्बलियाँ भी ये मंज़र देखेंगी कि वहाँ सारे नौजवान ही आएंगे। जब हाफिज साहब जैसे नौजवान वहाँ पहुँचेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये उस्तादों की करामत होगी। और एक बात उन्होंने वो पंजाब असम्बली के सामने कही थी ना, बड़े जलाल में, वो उनकी हर अक्सर तबीयत जलाल आ जाता था और लोग कहते थे बड़ी सख्त बातें करते हैं। फरमाया अपनी ज़ात के लिए कभी सख्ती नहीं आई, जब भी हुजूर की बात आती है फिर मुसलमान को चाहिए कि हुजूर की बात आए तो ऐसे सीना करके बात करे। हुजूर की बात दिलेरी से होती है। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका मिंबर पे बैठे हैं। हुजूर ने जंग के लिए ऐलान फरमाया और फरमाया ये मेरी तलवार है, ये कौन लेगा जो इसका हक अदा करेगा। हज़रत अबू दुजाना खड़े और हुजूर इसका क्या हक है। फरमाया इसका हक ये है कि ये लड़ते लड़ते टूट जाए या कुंद हो जाए, लेकिन लड़ने वाला पीछे ना हटे, पीछे ना हटे। और दूसरा हक ये है ये चलते हुए किसी औरत और बच्चे पर ना चले, उस पर ही चले जो मुकाबले में आया है। भला यार तलवार उठी हो फिर बंदा वेखदा कौन मुकाबले च आया। एटम गिरे हिरोशिमा और नागासाकी पर, 3 करोड़ आदमी लुकमा अजल बन जाए, जिनमें औरतें भी हों, बच्चे हों। लोगों को आज तक हमारे दीन की तलवार का इतराज़ है। हमारे वज़ीर आज़म भी कहते हैं, लोग कहते हैं दीन तलवार से फैला है, इखलाक से फैला है। उस्ताद फरमाया हुजूर की तलवार की नफ़ी नहीं की जा सकती। मेरे आका का जब विसाल हुआ था तो 9 तलवारें हुजूर के कमरे में लटक रही थी, 9 तलवारें। और मेरे आका ने मिंबर पे बैठ के तलवार कहा था ये कौन लेगा, तस्बीह नहीं कहा था ये कौन लेगा जो बैठ के मुझ पर दुरूद पड़ेगा। फरमाया दुरूद पढ़ना भी इबादत है, लेकिन जब वक़्त आए तो तलवार मैदान में लेके आना और जुर्रत से बात करना ये हुजूर का हुक्म था। हज़रत अबू दुजाना ने हुजूर से वो तलवार ले ली और अपना ख़ास कपड़ा अपने कमर पे बांधा और पहलवानों की तरह ऐसे अकड़ के चले। अब मेरे आका ने देख के कहा अबू दुजाना ये चाल अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह ने मना किया है। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, ज़मीन पे इस चाल से नहीं चलना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। फरमाया हाँ, जब अल्लाह और उसके रसूल दुश्मन सामने हो फिर इस तरह चलना अल्लाह पसंद करता है। इससे अगली भी बात, जब मेरे आका 6 हिजरी को हुजूर ने ख्वाब देखा कि हम इहराम पहन के काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। सुबह हुजूर ने सहाबा को अपना ख्वाब सुनाया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि हम काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। मक्के से आए सहाबा को 6 साल हो गए थे। कितने? 6 साल।
صحابہ نے جلدی جلدی خوشی میں احرام باندھے، تیاری کر لی۔ حضور نے کہا میں نے تو اپنا خواب سنایا تھا، تیاری کا حکم تو نہیں دیا تھا۔ یہ ان کی محبت تھی۔ میرے آقا نے بھی تیاری فرما لی، اور پھر حدیبیہ کے مقام پہ روک لیے گئے، وہاں صلح نامہ ہوا، حضور واپس آ گئے۔ 7 ہجری کو پھر حضور عمرہ قضا کے لیے گئے۔ کس کے لیے؟ عمرہ کرنے کے لیے۔ منافقوں نے، کافروں نے کہا اس سال تو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آئندہ سال آنا، ہم 3 دن کے لیے کعبہ مکہ تمہارے لیے خالی کر دیں گے، اور تم آ کے طواف کر لینا، اپنے جس طرح چاہنا کرنا۔ میرے آقا 7 ہجری کو مکے میں داخل ہوئے عمرہ قضا کے لیے۔ میرے آقا نے صحابہ کو کہا صحابہ رمل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ جتنے بھی حج میں جاتے ہیں نا، جب طواف شروع کیا جاتا ہے نا کعبۃ اللہ کا، تو پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے۔ ایسے بازو پھیلا کے، سینہ آگے نکال کے، ایڑیاں اٹھا کے، بہادروں کے پہلوانوں کی طرح۔ بتاؤ یہ تکبرانہ انداز ہے کہ نہیں؟ اے سارے سمجھداروں بولو ہے کہ نہیں؟ پھر یہ عام جگہ اللہ نے اجازت نہیں دی، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لیکن میرے آقا نے فرمایا کعبے میں اس طرح چلنا ہے۔ اللہ کو پسند آیا میرے محبوب اور ان کے غلاموں کا عمل۔ فرمایا محبوب یہ ادا مجھے بڑی پسند آئی ہے، اگرچہ میرا گھر ہے، کعبہ ہے، مسجد حرم کا سین ہے، لیکن آپ کی یہ ادا اور آپ کے غلاموں کا عمل مجھے پسند آ گیا ہے۔ اب یہ پسند مجھے اتنا ہے قیامت تک بھی جو حاجی آئے وہ یہاں آ کے اس طرح پہلے کرے، تاکہ حضور کی سنت بھی پوری ہو جائے۔ تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وما علیہ الا البلاغ المبین۔